Good morning, students. Today is our module 15 of the same chapter, electricity, and we'll continue with the NCERT exemplar questions. Now, question number 22. Draw a circuit diagram of an electric circuit containing a cell, a key, ammeter, a resistor of 2 ohm in series with combination of two resistors 4 ohm each in parallel, and a voltmeter across a parallel combination. After that, we have to answer, will the potential difference across the 2 ohm resistor is same as the across of parallel combination of 4 ohm resistor. We have to justify your answer by giving the reason. So here I have drawn the circuit diagram. 2 ohm in series with the parallel combination of 4 ohm, and voltmeter is connected. Here ammeter is connected, battery is connected, key is connected. Up he is asking, will the potential difference across the 2 ohm resistor is same as across the parallel combination of 4 ohm? Yes, it is same. Why is it so? When we will solve this 4 ohm and 4 ohm in parallel by this formula, what we will get? We will get 2 ohm only. It is 1 by Rp. Rp would be 2 ohm. देन 2 ओम एंड 2 ओम इन सीरीज, तो दोनों के अक्रॉस में, जब दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है तो उनके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा. तो आंसर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर विद द कैलकुलेशन, यू हैव टू नोट डाउन. नाउ नेक्स्ट, हाउ डज use of fuse wire protect the electric appliance? Dear students, as we know, fuse wire is used for a proper current rating according to the requirement of the circuit. So different fuses are used according to the requirement. So whenever there is a more current with respect to the specified value, the temperature of the fuse wire increase and it melts. In this way it will protect the electrical appliances. So I have written the answer, you can note down. Now next question is, what is electrical resistivity? This I have already explained you can note down from your notes, you have to note down. Now next part is, in a series electric circuit comprising a resistor made up of a metallic wire and a meter of 5 ampere, the reading of a meter decreases to half when the length is double. Yes, अब इसके लिए छोटा सा एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे. एक रेजिस्टर है R, इसमें करंट में कोई रीडिंग आ रही है और एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है. अब वो कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है, रेजिस्टेंस की लेंथ जो है वो डबल हो गई है. अब हमें पता है रेजिस्टेंस इज रो L अपॉन A. अब लेंथ जो है वो 2L हो गई है, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है दैट विल बिकम 2 रो L अपॉन A. ये ओल्ड रेजिस्टेंस है तो R डैश विल बिकम 2R. अब रेजिस्टेंस जब डबल हो जाएगी तो करंट हाफ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. हेयर आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, यू कैन सी एंड नोट डाउन. नाउ व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? यस, इट इज kWh, किलोवाट आवर, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ जूल्स. हेयर इज द कैलकुलेशन, ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, यू कैन नोट डाउन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट containing an electric lamp, a conductor of 5 ohm when connected to a 10 volt. यानी कि हमें अप्लाइड वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट और सर्किट का करंट दे रखा है 1 एम्पियर और एक बल्ब और एक ये कंडक्टर. ये मैंने कैसे ही सिंबल बना दिया, कंडक्टर का कोई सिंबल नहीं होता. एक कंडक्टर इज़ अ सिंबल वायर, तो बट दिस इज़ शोइंग अ कंडक्टर, आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज शोइंग अ कंडक्टर. अब कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस. सो हमने इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस R1 ले लिया एंड कंडक्टर का R2 ले लिया. ओवरऑल सर्किट का करंट हमें पता है, तो हमें पता है कि अगर ओवरऑल सर्किट करंट कब निकला होगा, जब ओवरऑल रेजिस्टेंस निकली होगी. ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी?
RS would be R1 plus R2, that is R1 plus 5 ohm, R1 plus 5 ohm. सो जब अब टोटल का करंट, जो सर्किट का करंट निकला है वो है I, और RS क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V बाई आई. V दिया है हमें 10/1, दैट इज़ 10 ओम. अब टोटल रेजिस्टेंस जो हो गए 10 ओम है, और R1 प्लस 5 इज़ 10 ओम, तो R1 कितनी हो जाएगी, ये भी 5 ओम ही हो जाएगी. हेयर इज़ द कैलकुलेशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, now if the resistance of 10 ohm is connected in parallel with this series combination. अब जो ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस 10 ओम का कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज यही है. अब आपको बताना है व्हाट चेंज इफ एनी करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल इट टेक प्लेस. अब ये जो अब 5 ओम कंडक्टर कौन सा, ये वाला. अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर और लगा दिया है, तो क्या इसमें करंट जाने में कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि अभी इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है. अब हमें देखना है कि क्या अगर हम इसके पैरेलल में एक और 10 ओम रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्या करंट की रीडिंग में चेंज होगा कि नहीं, देखते हैं. सी, इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम बनेगा. अब जो है R1 और R2 जो थी हमारी 10 ओम थी, उसके पैरेलल में 10 ओम लगी है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गई 5 ओम. अब ओवरऑल करंट जब सर्किट का निकालेंगे बाय द ओम्स लॉ, दैट विल कम आउट टू बी 2 एम्पियर. अब ये 2 एम्पियर करंट है, इस वाली ब्रांच में भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें भी 10 ओम है. जब दोनों ब्रांचेस में सेम रेजिस्टेंस है, तो ये जो 2 एम्पियर करंट आ रहा है इस पॉइंट पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे भी 1 एम्पियर जाएगा और यहाँ पे भी 1 एम्पियर जाएगा. यानी कि इस वाली ब्रांच में पहले भी जो सर्किट हमें गिवन था 1 एम्पियर ही जा रहा था, और अभी भी 1 एम्पियर जा रहा है. सो हमारी करंट की रेटिंग कोई भी चेंज नहीं होगी. इधर आई हैव एक्सप्लेन इन राइटिंग ऑल्सो. अब जब उसमें करंट रेटिंग चेंज नहीं हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हुई है. करंट सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, I सेम हो गया, R सेम हो गई. ठीक. नाउ वाई पैरेलल अरेंजमेंट इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग. ये मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू भी समझाया था, और इसके नोट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, आप वही इसमें लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बल्ब B1, B2, B3 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं. ये तीनों बल्ब जो हैं आइडेंटिकल हैं, मीन्स इनकी वोल्टेज सेम है. व्हेन 3 बल्ब ग्लो, जब तीनों के तीनों अगर ग्लो करते हैं, तो ये जो सर्किट का करंट है वो 3 एम्पियर है, इट इज़ 3 एम्पियर. अब आपको ये कंडीशन दे रखी है कि तीनों के तीनों अगर वर्क करते हैं, और आप देखिए तीनों के तीनों बल्ब जो हैं कैसे कनेक्टेड हैं पैरेलल में, और अप्लाइड वोल्टेज कितनी है हमारी 4 एम्पियर, और टोटल सर्किट करंट है 3 एम्पियर अगर तीनों के तीनों ग्लो कर रहे हैं. अब व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स व्हेन द B1 गेट फ्यूज्ड. अब आपका B1 तो हो गया फ्यूज, क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन है, तो B2 और B3 जो है एज इट इज़ ही ग्लो करते रहेंगे पैरेलल में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. यही तो एडवांटेज है पैरेलल सर्किट की. तो इसका आंसर ये आएगा, B1 एंड B2 आर आइडेंटिकल, सो टोटल this is the answer. If the B1 get fused, the B2 and B3 will glow as it is because they are connected in parallel. Now next question को समझते हैं. What happens to the reading of A1, A2, A3 and A when B2 get fused. अब आपका B2 फ्यूज़ हो गया, ये सर्किट से चला गया. अब जब ये देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा पहले हम फर्स्ट वाले स्टेप में ही जाते हैं. जब टोटल करंट 3 एम्पियर था, सर्किट का टोटल करंट 3 एम्पियर है, यानी कि इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, इस ब्रांच में भी 1 एम्पियर जा रहा है, और इस ब्रांच में भी 1 एम्पियर जा रहा है. अब क्या हुआ, B2 हमारा फ्यूज़ हो गया, तो इसमें 1 एम्पियर जा रहा था, इसमें 1 एम्पियर जा रहा था, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर. यानी कि A1 और A3 की रीडिंग तो 1 एम्पियर रहेगी, बट जो ओवरऑल करंट है उसकी चेंज होके वो 2 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि A2 के अंदर 0 एम्पियर जा रहा है, क्योंकि ये सर्किट ये जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया है. तो यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको देख लेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब कह रहा है हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द बल्ब ग्लो टुगेदर। अब तीनों के तीनों ग्लो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पावर इज वी आई, टोटल करंट हमें पता है अगर तीनों ग्लो कर रहे हैं दैट इज 3 एम्पियर, और अप्लाइड वोल्टेज कितनी है 4.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 13.5 वॉट। तो इस तरीके से करेंगे एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now next question is 3 incandescent lamp of 100 watt each are connected in series in electric circuit. In another circuit, a set of 3 bulbs of the same wattage connected in parallel. एक बार वो सीरीज में लगे हैं और एक बार आप पैरेलल में लगे हैं। इसके लिए हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे। अब उसके बाद वो पूछ रहा है विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, जस्टिफाई योर आंसर। नो स्टूडेंट्स, दोनों में सेम ब्राइटनेस नहीं होगी। रिकॉल दैट वीडियो जिसमें मैंने 2 बल्ब से ये डेमो किया था कि वहाँ पे मैंने अलग अलग वोल्टेज से किया था, यहाँ पे ये सेम वोल्टेज बोल रहा है पर लॉजिक सेम ही लग रहा है। जब वो सीरीज़ में लगेंगे तो ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और ओवरऑल सर्किट का करंट जो है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली जब वो पैरेलल में लगेंगे तो अप्लाइड वोल्टेज सेम रहेगी और तीनों के तीनों सेम वॉट के हैं तो तीनों में सेम करंट जाएगा और सेम इंटेंसिटी से वो ग्लो करेंगे। तो ये मैंने इधर आंसर लिख भी दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया है। देखिए एक्चुअली सीरीज़ में जो करंट होगा वो 1/3 होगा। कैसे, सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 3R तो आई हो जाएगा V/R सीरीज़, तो V/3R हो जाएगा। बट पैरेलल में क्या होगा, सिंपल V/R, क्योंकि पैरेलल में अप्लाइड वोल्टेज जो है हमारी V रहेगी और सिंगल रेजिस्टेंस कितनी है R है, तो I1 I2 I3 विल बी सेम और उसकी वैल्यू होगी V/R। सो इस तरीके से इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। नाउ सेकंड पार्ट इज now let one of the bulb in both the circuit get fused. Will the result of the bulb continue in each circuit? No. सीरीज में तो अगर एक फ्यूज़ होगा तो सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा और सर्किट में करंट नहीं जाएगा और तीनों ही बल्ब नहीं जलेंगे। ये भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था। और पैरेलल के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी अपनी इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेंगे। तो ये आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चंस एक्सप्लेन। ये तो आपको एक्सप्लेन जो किए हैं क्वेश्चन वो आपको नोट डाउन करने हैं। उसके अलावा आपको ये 30 से 35 क्वेश्चन अपने आप लिखने हैं, सेल्फ ट्राई करने हैं और इनके हिंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। 30 से 35 क्वेश्चन के हिंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप और आपको पता है ये वाली जो NCERT एग्जाम्पलर है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वो भी मैंने कहा था कि आप प्रैक्टिस रजिस्टर में करेंगे, तो इसको भी आप प्रैक्टिस रजिस्टर में ही करेंगे। ये जो हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपको अलॉन्ग विद हिंट दिए हैं ये आपको लिखने हैं। और अब जब भी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी तब लास्ट मॉड्यूल वाले और ये मॉड्यूल वाले NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए हैं ये डिस्कस होंगे, तब तक आप इसको करिए। अब आपकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की टर्न आएगी, उसके बाद फिज़िक्स की टर्न आएगी। एंड दिस चैप्टर इज़ ओवर and we will be doing some more extra question from this chapter, and I will be giving you practice sheets also to do practice, to do extra more practice in our physics term. Thank you.